अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्ब हाल का। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं अमरीकी सदर मिस्टर जो बाइडन, साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा। थैंक यू। आइए गुफ्तगू करते हैं। ओह सॉरी, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं नहीं दफा करो अब थेरी हो गई है बस। नहीं 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 ਇਹ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤਾਰਫ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਆ ਕਿ ਚਾਚਾ ਟਰੰਪੂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ। क्या आपका नाम हुआ करता था? ਸ਼ੀਦਾ माइकल ट्रंप? ਬੋਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਦਾ ਬੋਰੀਆਂ ਵਾਲਾ। नहीं, माइकल ट्रंप नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, डोनाल्ड ट्रंप, ਨਹੀਂ मिस्टर डोनाल्ड ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਲਵੋ। ਇਹ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚਾਚੇ ਟਰੰਪੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਆਉਂਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਲੈਂਦੇ ਜਰਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ ਟਰੰਪੂ ਦਾ। Are you really so confident कि आप दोबारा इलेक्शन? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੰਗਰੂਜੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। 2 साल हो गए इसको। ये दौर है कि 8 दिन में भूल जाता बंदा। नहीं, वो बड़े पुरज़्म है कि मैं इस गैप के बाद दोबारा इलेक्शन लड़के फिर जीत जाऊंगा। और अगर आपने ये कारनामा सारा अंजाम दे दिया ना, तो 1885 के बाद ये पहला वाकया होगा अमेरिकी तारीख का, ये कि दोबारा गैप के बाद कोई अमेरिका का सदर बना। ਔਰ ਪੁੱਤ ਸਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਮੈਂ 2/3 'ਚ ਹੀ, अच्छा अच्छा। ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਲ ਕੋ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕੇ। इलेक्शन तो नहीं जीतते, अब तुम कसीनो में ही जीतोगे। ਇਹ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ। ਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਘਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕੀਨੀਆ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। क्या झुग्गियों में बसने वाले इंसान नहीं होते? क्या झुग्गियों में बसने वाले सांस नहीं लेते? क्या झुग्गियों में जमहूरियत नहीं होती? ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਮੂਲੀਆਂ 8 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹਨ। ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਛੱਡੀ ਆ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਲਿਮਕ ਨਹੀਂ 8 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੱਭਦਾ। तो भाईजान को क्या लगे मूली से? वो मूली वाला पराठा खाते ही नहीं। ब्लड प्रेशर मना किया डॉक्टर ने। ਇਹ ਹੱਲੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਾ ਮੂਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰੌਂਠਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕਰਤਾ ਨਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਾਲ, ਪੁੱਤ ਮੋਂਗਰੇ ਮੁਫਤ ਚੱਕ ਲਈਦੇ ਹਨ। ਮੁਫਤ ਚੱਕ ਲਈਦੇ ਹਨ ਪੁੱਤ। ਕਿਲੋ ਮੂਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਨਾਲ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਲੋ ਮੋਂਗਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਇਹੋ ਜੇ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਮੋਂਗਰੇ ਆਲੂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਰਾਂਝੇ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਚੂੜੀ ਖਾ ਲਈ ਆ। ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਚ ਆਲੂ ਮੋਂਗਰੇ ਪਕਾਉਣੇ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ। सियासत की बात करो, पकवान खाना बंद करो। ਉਹ ਖੜ ਜਾ ਤੂੰ ਐਡਾ ਜਵੇਦ ਹਾਸ਼ਮੀ। ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ, ਪਕਵਾਨ ਖਾਨਾ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਗੀ ਪਕਵਾਨ ਖਾਨੇ ਚ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਡੋਈ ਖੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜਾਈ, ਵਰਨਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਤੇ ਡੋਈ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਠੀਸ਼ੂ ਠੀਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੂਕ 'ਚ ਗੋਲੀ ਫਸ ਗਈ ਆ। आप क्यों उनको चैलेंज कर रहे हैं? अभी मिड टर्म इलेक्शन में सेनेट में उन्होंने आपसे एक सीट बढ़ा ली है अपनी। Yes, absolutely right. ਪੁੱਤ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮੈਂ ਵਾਧੂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਜਰਾ ਇਹਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੈਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਏਡਾ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਤ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੁਣੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਰਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਫੁੱਫੋ ਮੇਰੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬਤਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਬਤਕ ਨਹੀਂ ਘੋੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਘੋੜਾ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਹਲਲ ਵਾਲਾ ਕਰਾਤੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਲਪੇਟ ਲਪੂਟ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੁਕਰੇ ਲਾਤਾ। ਨਾ ਬਿਜਲੀ, ਨਾ ਗੈਸ, ਨਾ ਕੁਝ, ਨਾ ਕੱਖ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਰਾ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਗੈਸ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। मिस्टर ट्रंप, आप बहुत दूर के ख्वाब देख रहे हैं, बल्कि बहुत ही दूर के ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन दोबारा अमेरिकी सदर बनने से पहले आपको
अपनी पार्टी की नॉमिनेशन जीतना है, उसके लिए आपको गवर्नर फ्लोरिडा को हराना पड़ेगा। वो आपके मुकाबले बड़ा तगड़ा कैंडिडेट है। ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਵਰਨਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਫਲੂਦੇ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਖਵਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਟਰੰਪ ਤੂੰ ਲੜ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁੱਤੋ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ओवर कॉन्फिडेंट है आप, ओवर कॉन्फिडेंट है। पहले इसी ओवर कॉन्फिडेंस में आप अमेरिकी सदारत लूज कर बैठे। बिल्कुल बिल्कुल कह रहे थे अमेरिका में मैंने अपने दौर पे हलाला करा दी थी, तो आपने तुम्हें भी तो हलाला कर दिया है। जो हलाला तुमने कराई है वो पार्लियामेंट में हमला करवाया है, वो केस तो अभी खत्म नहीं होगा। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮਾਸੀ ਜੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆ, क्या बात है, क्या बात है। ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਘਪਲਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੈਂਥਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ। ਇਹ ਵਾਹ ਹਯਾਤ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਆ ਜਾ ਤੋ ਜਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਮੈਂ ਪੀਰਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਓ ਯੈਸ, ਤੂੰ ਪੀਰਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਆਪ 40 ਦੇਗਾਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖੀ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਸ਼ਕਣ ਆ ਵੇਖੀ ਕਿਵੇਂ ਬੂਏ ਕੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਕਰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਤ, ਵਾਨੇ ਨਮਾਇੰਦਗਾਨ ਚ ਐਵੇਂ 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਆ ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਉਹ ਮੇਰਿਆ ਪੁੱਤਾ ਇੱਕ ਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗੇੜਾ ਵੀ ਕੱਢ ਜਾ ਜਰਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਸਫਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਕਾਫ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਚਾਚਾ ਜਿੱਦਣ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਤੇ ਯਰਦਾਰੀ ਤਕਾਫ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਲੱਗ ਪਤੇ ਜਾਉਣੇ ਆ। ਵੇਖ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਬੱਖੀਆਂ ਚ ਹੂਰੇ ਮਾਰਨੇ ਆ ਜੋ ਕਰ ਛੱਡੀ ਤੁਸੀਂ अमेरिका दे नाल। अरे मेरी बात सुने मिस्टर ट्रम्प, ये तो जरा बताएं कि ये आपकी क्या मंतक है? आपका ये जो बयान सामने आया कि ऐवान नुमाइंदगान में अगर तो हम जीत गए तो उसका क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, अगर हार गए तो डिसक्रेडिट मुझे नहीं मिलना, ये क्या बात है? पुत गल ते ठीक है, हारना इको तरीके नाल है, इन्ना घपला करना। वरना एजेंसियां भी कहन डई है कि ट्रंप ने बड़ी हथ चुकी है इस वेले। हालाला होई आ पूरे अमरीका दे च ट्रंप दी फैनशिप दी। पुत गल ये आ कि की आंदे आ यबाने खल्क को नकारा खदा समझो। अच्छा देखो पूरी खलकत कहन डई आ कि ट्रंप ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਫੇਰ ਜੇ ਟੰਪੂ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਟਰੰਪੂ ਕੋ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, हुकूमत ने करनी है 2 लंबरी। दो नंबरी को छोड़े, आपके लिए तो हनूज दिल्ली दूरस्त। अभी दिल्ली बहुत दूर है आपके लिए। अभी देखिए, आपको अपनी पार्टी की नॉमिनेशन जीतनी है, सियासी मैदान एक तरफ, जो आपके खिलाफ दर्जनों केसेस हुए हैं उनसे कैसे निपटेंगे? खलो जा इडा तू ट्रू ना मुराद कोला चतर छिड़कन वाला। मिस्टर ट्रम्प, हमें सिर्फ ये मेन इलेक्शन जीत लेने दे। हमारे बाबा जी बाइडन का हमसे वादा है कि उथे महक मलक दा डांस होएगा। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਹਿਕ ਮਲਕ? ਮੈਂ ਮਹਿਕ ਮਲਕ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆਂ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਰੰਗ ਸੱਜਣੇ ਹੀ ਸੱਜਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਓ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਲੱਤ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੂਕਣਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। पैन तुसी बिल्कुल ना घबराओ, चूकना किथे निकलेगा? चारों तरफ सिक्योरिटी खड़ा रही है। सिक्योरिटी चूकना निकलने से रोक लेगी। ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਬਚਾ ਲਵੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਟਰੰਪੂ ਲੈ ਆਵੋ ਵਾਪਸ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਮੂਲੀਆਂ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈਆਂ। आपको मूलियों की इतनी फिक्र क्यों है? ਪੁੱਤ ਅੱਧਾ ਮੁਲਕ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦਾ ਮੂਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਮੁਲਕ ਕਰਦਾ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੀ, ਇਹ ਤੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚ 18 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ। ਅੱਖ ਖੋਲਦੀ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਗਾਡਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਹੈ ਵਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਹੈ ਉਹ, ਫੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਪੈਰ ਲਾਉਂਦਾ। ओ ऐसी भी कोई बात नहीं ट्रम्प, 8 घंटे तो रोजाना बाबा फेसबुक देखते हैं। ओ मिस्टर बाइडन, आप फेसबुक देखते हैं? I don't like Facebook। ਇਹ ਮੂੰਹ ਭੈੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੇਸ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਡਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਈ ਡੋंट ਲਾਈਕ ਫੇਸबुक। ट्रम्प टके टके की आप बातें करते हैं, हकीकत ये है कि आप सुन नहीं सकते नहीं, सुन तो ले। ਉਹ ਤੂੰ ਨਾ ਸੁਣੋ ओ ਉਹਦੀ मामा, सुन सुन तो ले। ले। इनकी सगी बेटी ने इनकी इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया और सिर्फ इस वजह से कि जो आपने सलूक रवा रखा था जब आप सदर थे, तो आपने व्हाइट हाउस में अपनी बेटी और दामाद को सीनियर मावनीन के ओहदे से हटा दिया था। ਪੁੱਤ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆ ਮੱਛਰ ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਅਸੀਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਆ। गैर महरम मर्दों से दूर रखते हैं। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਭਤੀਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਆਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸਤ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਆ ਉਹਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਕੀਏ ਤੇ ਫੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੱਤੇ ਖੈਰਾਂ ਲਿਖਦੀ ਆ। मिस्टर ट्रम्प, असल बात यह है कि आपकी साहबजादी अमेरिकी सियासत से नहीं, आपकी सियासत से दूर रहना चाहती है। ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਭਾਗ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਏ। ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਲਿਆ ਛਾਪਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਟਰੱਕ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਛਾਪਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ। अच्छा, मुझे याद आया, आपकी छोटी साहबजादी की शादी हुई है, बहुत बहुत मुबारक हो। ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਪੁੱਤ। ਉਹ ਜਵਾਈ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਪਾਰਕ 'ਚ ਦੀ ਛੋਟੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਕੁੱਕੜ ਦਾਲ ਦੇਈਦਾ। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान का कितना नंबर है आबादी के हवाले से? फिलहाल तो 5वां है, लेकिन बस 1-2 सालों के बाद पाकिस्तान 4थे नंबर पे आ जाएगा, और जो 4थे नंबर पे है इंडोनेशिया, वो 5वें नंबर पे चला जाएगा। भाईजान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। किस बात की? दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई। 8 अरब? अभी कल की बात लगती है, हम बात पे कहा करते थे यार दुनिया की आबादी 7 अरब हो गई है, उससे चंद साल पहले देखते थे 6 अरब कहा करते थे। यानी हमारी होश में मुझे जो फिगर याद है 5 अरब बोला करते थे। जी बिल्कुल। तो 5 से 6, 6 से 7 और अब 7 से 8 अरब हो गई है। और 7 से 8 अरब होने में दुनिया की आबादी को पता है कितने साल लगे? कितने साल? 12 साल। 12 साल लगे। हाँ, अलबत्ता 8 से 9 अरब होने में 15 साल लगेंगे। इसका मतलब है कि दुनिया भर में जो आबादी में इजाफे की शरह है वो कंट्रोल हो रही है, वो कम हो रही है। अच्छा, दुनिया भर में ज़्यादातर मुल्कों में आबादी की शरह में जो इजाफा है उसमें कमी देखने में आ रही है। तो अगर इसी रफ्तार से मामला जारी रहा तो फिर जो 10 अरब है ना, 10 अरब की फिगर टच करने में 33 साल लगेंगे। यानी वो काफ़ी लंबा गैप पड़ जाएगा फिर 9 से 10 अरब होने में। यानी 2070 में जाके कहीं दुनिया की आबादी जो है वो 10 अरब हो जाएगी। ठीक है, और इसमें जो निस्फ हिस्सा है वो एशिया का है। सर टॉप पे तो चाइना ही है ना? फिलहाल तो चाइना 1 अरब 43 करोड़ की आबादी चाइना की है। और हिंदुस्तान की कितनी होगी भला? कितना फर्क होगा? नजदीक ही होगी जी। बिल्कुल बाल बराबर का फर्क रहेगा। 1 अरब 43 करोड़ चाइना की है और 1 अरब 41 करोड़ जो है वो हिंदुस्तान की है। और 1 साल के बाद जो है वो हिंदुस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा। चाइना को पीछे छोड़ जाएगा 1 साल के बाद से। अच्छा जी। हाँ जी, जाहिर है चाइना ने तो फिर कुछ फैमिली प्लानिंग कर ली हुई है। इंडिया जो है वो जरा साढ़े अंदर नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया हम जैसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दुनिया में जो आबादी की शरह में इजाफे का जो देखी जाए ना, शरह देखी जाए तो वो 0.9% है। 0.9%। हमारे यहाँ पता कितना है पाकिस्तान में? 2.8%। 2.5 गुना शायद ज्यादा बनता है ये। और हिंदुस्तान की पता है कितनी है? 1.9%। बांग्लादेश की भी इतनी है। वैसे भाजनैद पाकिस्तान की अब टोटल आबादी कितनी हो चुकी है? माशाल्लाह, अल्लाह नजर न लगाए। माशाल्लाह माशाल्लाह 23 करोड़। ठीक है, दुनिया की आबादी का 3% जो है वो पाकिस्तान पे मुश्तमिल है। और मतलब तुम देखो ना कि 23 करोड़ हमारी होश में था, 6 करोड़ सोना करते थे। 6, 7, 8, 9, 10
एक ही काम में तरक्की मेरे की है। बचपन में मैंने 13 करोड़ सुने हुई है। जी सर जी, पाकिस्तान का कितना नंबर है आबादी के हवाले से? फिलहाल तो 5वां है, लेकिन बस 1-2 सालों के बाद पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ जाएगा, और जो चौथे नंबर पे है इंडोनेशिया, वो 5वें नंबर पे चला जाएगा। और देखो ना कि 23 करोड़ है, पाकिस्तान का शुमार जो है वो उन 21 मुल्कों में होता है जहां पे शरह आबादी में जो इजाफे की शरह है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। और पाकिस्तान से पीछे जो है, या पाकिस्तान से ज्यादा कहना चाहिए, जहां पे आबादी में इजाफे की शरह जो है पाकिस्तान से ज्यादा है, वो मेरा ख्याल चंद अरब मुल्क होंगे और चंद अफ्रीकी मुल्क होंगे। और एक बड़ी हैरत अंगेज आपको बात बताऊं कि सन 2100 में चीन की आबादी जो है वो 1 अरब 6 करोड़ रह जाएगी। 1 अरब 43 करोड़ से कम होके 1 अरब 6 करोड़ रह जाएगी। और सन 2100 में पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ से बढ़ के 41 करोड़ हो जाएगी, ऑलमोस्ट डबल। मैं ना जी इतना काका हो जाना है कि अब्बे ने कहना करना है या काके पीछे करो, मैं बाहर जाना है। ये सर जी, पाकिस्तान में जो इतनी तेजी से इजाफा हो रहा है ना आबादी में, ये ख्वाजा सराओं की दुआओं का बड़ा हाथ है। अच्छा, हाँ, ये एक बच्चा पैदा होता है, वहां बधाई लेने आते हैं, तो अगले की दुआ दे जाते हैं। ज्यादा अफसोस की बात यह है कि हमारे अपने खित्ते में बांग्लादेश 1.09, हिंदुस्तान भी कमोपेश यही है, ईरान में भी इतना ही मामला, ऐसा ही मामला है। और मेरा ख्याल है कि पूरे खित्ते में हम सिर्फ अफगानिस्तान से एक स्टेप आगे हैं इस हवाले से, वरना जो है अफगानिस्तान हमसे भी यानी पीछे है। आबादी में इजाफा ज्यादा हो रहा है अफगानिस्तान, सिर्फ अफगानिस्तान हमसे पूर्ली परफॉर्म कर रहा है, या कहना चाहिए बेटर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन बहरहाल जो सबसे बड़ी हमारे खित्ते में सक्सेस स्टोरी है ना, वो बांग्लादेश की है। आज से यानी कुछ साल पहले 1980 में वहां पे औसतन एक औरत जो है वो 6 बच्चे पैदा करती थी, ठीक है। आज जब देखा जाए तो वहां पे एक औरत 2 बच्चे पैदा करती है। बहुत नुमाया उन्होंने फर्क डाला है। बड़ी बात। तो सर जी, पाकिस्तान क्यों नहीं इस हवाले से कोई प्लानिंग करता? यार प्लानिंग ही तो करता है पाकिस्तान भी और पाकिस्तानी भी। 2 बेटियां हो जाती हैं तो कहते हैं अब 2 बेटे करने हैं, 2 बेटे हो जाते हैं कहते हैं अब 2 बेटियां करनी है, फिर 3 बेटे हो जाते कहते हैं अब 2 बेटे होने चाहिए। पाकिस्तानियों से ज्यादा औलाद की प्लानिंग कौन कर? इंतहाई नाशुक्री और इंतहाई नदीदी कौम हो चुकी है हमारी, जो है ना जी। हम सब लोग जो हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हम देखे वाकई कई घरों में आप जाते हैं तो सिर्फ बेटे के लालच में 6-6, 7-7 बेटियां पैदा की हैं। तो यार खुदा के वास्ते, बेटी भी नेमत है बहुत बड़ी, और उसको किसी कीमत भी आप बेटे से कम क्यों समझ रहे हैं? आप क्यों ये सोच रहे हैं कि बेटा आएगा ही तो औलाद पूरी होगी? और उसी चक्कर में हर दूसरे घर में जाके आप देखें, आपको यही सूरत हाल नजर आएगी कि बेटे के चक्कर में औलाद जो है वो 6-6, 7-7 बच्चे। अच्छा, ये अब अंदाजा करो कि हमारा शुमार उन मुल्कों में होने लग गया। वो नहीं, एक बड़ा पुराना लतीफ़ा है थैले के बारे में है कि थैले के यहाँ जब 8वें बच्चे की पैदाइश हुई है तो इसके कोई रिश्तेदार वो इसके घर का पता पूछते पूछते आए, तो वो गली की नुक्कड़ पे किसी मोची की दुकान थी, उससे पूछा कि जी वो कहाँ है जिनके यहाँ 8वां बच्चा हुआ है? तो मोची ने कहा और जाओ जाओ अपना काम करो, उन्होंने तो रोज दा ही ये काम है। एग्जैक्टली अक़वाम मुत्तहिदा ने उस मोची वाला हाल ही किया है। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा पहले हमें आबादी को कंट्रोल करने के लिए रेगुलर बेसिस पे फंड्स देता था। अब उन्होंने कहा कि जी इन्होंने तो रोज दा ही काम है, ये तो रोज हमसे फंड्स लेते हैं और आबादी काम नहीं कर रहे। अब उन्होंने फंड्स देना बंद कर दिए, ये कह के कि इन्होंने तो रोज दा काम है। मैं कहना जी, सारी जिंदगी से हम सुन रहे हैं फैमिली प्लानिंग की बड़ी कंपेन चल रही है और बड़े इश्तहारात चल रहे हैं और बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, कग फर्क नहीं पिया। और फिर जाहिर है ये सारी कंपेन जो है वो अमेरिका के पैसों से जो चल रही थी, उन्हें क्या होना कि यार फर्क तो पै नहीं रहा। हुंदा ना बंदा किसी डॉक्टर के पास दवाई लेने जाता है तो साल बाद कह देता कि यार ये को नहीं फिर फर्क पै रहा, तो फिर किसी और डॉक्टर को चलिए। उन्होंने कहा होगा कि यार पाकिस्तान में तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, फिर किधरे बांग्लादेश वाली निकली है। प्रॉब्लम पता है क्या, हम लोग इस मामले की संगीनी का अंदाजा लगाने में बिल्कुल एक तो गैर संजीदा है, और ज़ाहिर है गैर संजीदा है तो फिर नाकाम भी हैं। हम बिल्कुल, हमें इसकी सीरियसनेस का बिल्कुल रत्ती बराबर भी एहसास नहीं है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो रहा है ना, वो 18 करोड़ आबादी जो है ना,
उसके लिए खुराक मुहैया करना। 23 करोड़ में से 18 करोड़ ऐसा है जिसके लिए खुराक मुहैया करना हमारे लिए कार्यदारद है, मुश्किल काम होता जा रहा है। 30 लाख टन गंदम हमें इंपोर्ट करना पड़ रही है। 30 लाख टन हर साल हमें गंदम बाहर से खरीदना पड़ रही है, एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद। देखो, हमारी पिछले 10 वर्षों के दौरान 4 करोड़ आबादी में इजाफा हुआ है, और जबकि हमारी जो जीडीपी है उसमें सिर्फ 2% का इजाफा हुआ है। आबादी में 4 करोड़ का इजाफा हो गया, जीडीपी में सिर्फ 2% का इजाफा हुआ है। तो ये मामला जो है ना, फिर उसके जाहिर है कि बेरोजगारी बढ़ेगी इससे, और इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही। पिछले 10-12 वर्षों के दौरान हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। फिर ज़राअत कहाँ पे होनी है? जहाँ पे ज़राअत होनी थी वहाँ पे अब नई नई कॉलोनीज बनती जा रही हैं। कई बार इसका हमने जिक्र किया है। तो ये जो आबादी का ये टाइम बॉम्ब है ना, इसको अगर टाइमली कंट्रोल ना किया गया तो किसी दिन ऐसा फटेगा कि हमारे कानों के पर्दे फट जाएंगे। यार, मैंने तुम्हें बताया नहीं था, एक दफा एक फंक्शन के ऊपर एतजाज एहसन साहब की बेगम साहिबा बाजी बुशरा मिली हैं, तो मुझे देख के कहती हैं ये पुत आपका प्रोग्राम देखती हूँ मैं, बड़ा आप कलप रहे होते हैं मुख्तलिफ मौजूआत पे। एक गल याद रखना, इस मुल्क की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना वो इसकी पॉपुलेशन है। बस ये 20 साल बाद 30 साल बाद भी रिजल्ट कटोगे तो ये मेरी बात ही रिजल्ट निकलेगा। चल दौड़ जाए तो मैं फिर दौड़ गया। एक और प्रॉब्लम जो है वो घरों का है। 1.5 करोड़ घरों की कमी का सामना है इस वक्त इस आबादी को। अच्छा सर, आपने जिक्र किया कि बांग्लादेश की आबादी कम हुई है, तो कोई और भी मुल्क है जहाँ पर आबादी कम हुई है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि बांग्लादेश की आबादी कम हुई है। ये जरा इस पे गौर करने की जरूरत है। बांग्लादेश में आबादी में इजाफे की शरह जो है ना, इजाफे की शरह वो कम हुई है पर ईयर। जो पर ईयर हम सोचते हैं कि इतनी आबादी बढ़ी है, इतने % बढ़ी है, उसमें अब कमी कमी वाकया होगी। अब कम परसेंटेज है के साथ बढ़ रहे हैं, कम परसेंटेज के साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ ममालिक हैं जिनमें गालिबन बोस्निया है, बोस्निया की आबादी में कमी वाकई हुई है। लेकिन वो लाखों में है, वहाँ पे आबादी भी लाखों में है और कमी भी जो है वो भी लाखों में ही होगी। लेकिन जो मुल्क जो है करोड़ों में चले गए हुए हैं, वहाँ पे आबादी को रिवर्स गियर नहीं अभी लगा, चाइना को लगेगा। चाइना ने बहुत ज्यादा इस पे एम्फेसाइज किया है। उन्होंने बताया ना कि कुछ अरसे बाद जाके वहां की आबादी जो है वो 1 अरब 6 करोड़ रह जाएगी। यार, चाइना में तो आप देखें तो बच्चे मिलते ही नहीं है, सारे बड़े बड़े ही फिर रहे होते हैं। मगर यहाँ पाकिस्तान में आप किसी बाजार में चले जाएं तो हमारी जो बहनें फिर रही होती हैं, उन्होंने अगर 10 उंगलियां ने तो बिचों 8 उंगलियां बच्चियां ने फड़ी होंगी। बल्कि कई औरतें जो वो बच्चे धागे के साथ बांध के ऐसे ऐसे भी कर पुतली तमाशा भी कर रही होती है। अल्लाह रहमत करे, अल्लाह पाक करे। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हुकूमत तो कहती है लॉन्ग मार्च नाकाम हो चुका है। बेटा, आपके मुंह में मैं कुछ दे भी नहीं सकता चूंकि गुंजाइश नहीं है। देखिए, अगर लॉन्ग मार्च नाकाम हो चुका है तो लॉन्ग मार्च को रोकने की तड़ियां लगाने वाले खुद क्यों हार्ट के अस्पताल में पहुंच गए? नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारी महफिल में मौजूद है इंतहाई दबंग शख्सियत, पीटीआई के सीनियर रहनुमा जनाब फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक है जी, फर्स्ट क्लास है। जुनैद साहब, आज बात सिर्फ आपके प्रोग्राम में ये करनी है कि पीटीआई की रिपोर्टिंग के हवाले से मीडिया का मायार बहुत गिर चुका है। बल्कि मैं समझता हूं कि हमारे पीटीआई के हवाले से जो भी खबर आती है वो पहाड़ खोदते हैं और उसमें से चूहा ही निकल रहा है। आप ये तोशा खाना वाला केस देखे ना, क्या हुआ? पहाड़ खोदते रहे और बीच में से निकला चूहा। अजीब बात है ना, जैसा दुनिया पहाड़ खोदती है, पेट्रोल निकलता है, मादनियात निकलती हैं, सोना निकलता है, तांबा निकलता है, यहाँ चूहे निकल रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, ये नीयत की बात है ना जी। अगर आपकी नीयत ही खोटी होगी तो फिर चूहा ही निकलेगा ना। अगर आपकी नीयत ही अच्छी नहीं है तो फिर कहाँ से पेट्रोल निकलना है या कहाँ से मादनियात निकलनी है? फिर चूहे ही निकलने हैं। और चूहे को पता चल जाता है जुनैद साहब कि खोदने वाले की नीयत ठीक नहीं है और चूहा दौड़ के बाहर आ जाता है। मैं ये समझता हूँ कि ये तोशा खाना वाला केस जो इन्होंने मीडिया वालों ने जिस तरह इसे उछाला है और जिस तरह किरदार कुशी करने की कोशिश की है इमरान खान साहब की, वैसे तो खान साहब को अल्लाह के फजल से कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से,
मगर मैं समझता हूं कि अब इन पे केस करना चाहिए और हरजाने का केस करना चाहिए, और हरजाना इतना होना चाहिए कि उससे पीटीआई के हर लीडर के लिए एक घड़ी आ जाए। यानी आप घड़ी लेने के लिए हरजाने का दावा करेंगे, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए नहीं। नहीं, घड़ी की हमें कोई लालच नहीं है जुनैद साहब, ना ही हमारे लीडर को कोई लालच है। आप जानते हैं कि वो भी मलंग आदमी है, और खान साहब के साथ हम भी बैठ बैठ के मलंग हो गए हुए हैं। बल्कि जुनैद साहब, हम तो सोच रहे थे कि अपनी सियासी पार्टी के साथ साथ एक धमाल डालने के लिए मलंग पार्टी भी तैयार करें। हाँ, मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में जितने भी मलंग लोग हैं ना जी, दरवेश लोग हैं, वो पीटीआई में इकट्ठे हो चुके हैं और उनसे फायदा उठाना चाहिए इस वक्त। जुनैद साहब, हमें कोई घड़ी की लालच नहीं है, मगर मैं कहता हूँ कि मीडिया को सबक सिखाने के लिए हरजाने का केस करके हरजाना लेके उसकी घड़ियां लें, और सारे लीडरान घड़ी बांध के फिर प्रोग्रामों में बैठे और घड़ी ऐसे करके दिखाएं। वाह वाह। और एंकर जब भी कोई गलत सवाल करे ना जी, उसको कहें कि भाई जी टाइम की हो जरा दसना। और फिर भी अगर वो बात को ना समझे तो फिर वही हाथ जो है वो ऐसे फिर भी सकता है। मैं कहता हूं यार, कुछ खुदा का खौफ खाएं, बात वो करें जिसमें कोई असलियत हो। आप सिर्फ प्रोग्राम चमकाने के लिए और प्रोग्राम अपने की रेटिंग लेने के लिए जो गंद और जो झूठ है वो उछालते जा रहे हैं। अब देखें ना, ये जो तोशाखाना केस है, वो तो उसके गुब्बारे में से हवा इस तरह निकल गई है कि वो स्टिकर बन चुका है। उसके बावजूद किसी ना किसी प्रोग्राम में कोई ना कोई एंकर उसे खरल में डाल के रगड़ रहा होता है। एंकरों को आप क्यों निशाने पे रख रहे हैं? आपके मुखालिफिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। ये गुज़िश्ता रोज अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शर्जील मेमन ने की है। देखें, जो दोनों नाम आपने लिए हैं, मैं मादरत के साथ अर्ज करूं, दोनों ही माइक के आगे बैठने वाले मुंह नहीं है। अलग अलग बात करें, दोनों का जिक्र आप अलग अलग करें। शर्जील मेमन साहब का अलग जिक्र करें, अता तारड़ का मैं अलग। वही बताने लगा हूं ना, शर्जील मेमन साहब जो हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जुनैद साहब, इस तरह का आदमी ज्यादा से ज्यादा खोती रेडी पे माइक लगा के गांव में क्रीम बेच सकता है। क्या बात कर रहे हैं चौधरी साहब? शर्जील मेमन तो बड़े पुराने सियासतदान हैं। हाँ, तो गांव में कनस्तर में क्रीम बेचने वाली भी पुरानी बात है। आजकल तो शीशियों में क्रीम बिक रही है, उस वक्त डोल में बेचते थे, कनस्तर में बेचते थे, और गांव में जाते थे तो खवातीन अंदर से ला के अपना को कप पिर्च वो भर लेती थी। हाँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अता तारड़ की बात कर रहे हैं, उसने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है? ग्रेसफुल आदमी है यार, खुदा का खौफ खाएं जुनैद साहब, ज्यादा से ज्यादा 7वें ग्रेड का होता है नहर के महकमे में इस तरह का। और नहर में डांग खड़ी करके बता रहा होता है यहाँ कितना खोबा है। मेरा मतलब है कि अब इस तरह के बंदे इमरान खान साहब की किरदार कुशी करेंगे। असल में जुनैद साहब, ये लॉन्ग मार्च से डरे हुए लोग हैं। इनको मालूम है कि जिस दिन हमारा लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंच गया, इनका धड़न तख्ता हो जाना है। चौधरी साहब, सुनने में आ रहा है कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही आपके मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। गोगा जी, आपने ये जो बात की है, आपके मुंह में मीठा दुआना। मगर मैं समझता हूं कि अगर लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद तक ना पहुंचा, वहां पे धरना ना हुआ, वहां पे हम चंद दिन ना बैठे, तो आपकी खुराक का बंदोबस्त नहीं होना। मगर चौधरी साहब, हुकूमत तो कहती है लॉन्ग मार्च नाकाम हो चुका है। बेटा, आपके मुंह में मैं कुछ दे भी नहीं सकता, चूंकि गुंजाइश नहीं है। देखिए, अगर लॉन्ग मार्च नाकाम हो चुका है तो लॉन्ग मार्च को रोकने की तड़ियां लगाने वाले खुद क्यों हार्ट के अस्पताल में पहुंच गए हैं? और जुनैद साहब, मैं आज आपको बता दूं, जिस दिन हमारा लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंच गया और खान साहब ने फाइनल कॉल दे दी, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत 1 मिनट नहीं निकालेगी। अच्छा जी 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 जी। हम तो इसलिए खामोश हैं, इनका तमाशा देख रहे हैं कि ये सीधे रास्ते से खुद ही अपने घरों को चले जाएं। अच्छा। चूंकि जुनैद साहब, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये अवामी हुकूमत नहीं है। अवाम आज भी वजीर आजम इमरान खान को ही समझते हैं। हाँ, इनको अमेरिका ने बनवाया है अगर वजीर आजम, तो हम बोल इसलिए नहीं सकते कि यहाँ अमेरिका आपको पता है कितना ताकतवर है। अब अमेरिका के हवाले से भी खान साहब का जो बयानिया है, जिस तरह ये सोशल मीडिया ने उसे तोड़ मोड़ के बयान किया है,
आज फिर उसी इशू के ऊपर लोग हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी बात पहले भी वही थी जो आज है। हम कहते हैं कि हम बिल्कुल दोस्ती चाहते हैं, बिल्कुल अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं, मगर उस तरह की दोस्ती नहीं चाहते कि बाद में हम गाना गाते फिरें, दुश्मन ना करे दोस्त ने जो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। हम चाहते हैं कि अगर हम दोस्त हैं अमेरिका के, तो अमेरिका भी हमारे साथ दोस्ती वाला किरदार अदा करे। मैं पहले दिन से जुनैद साहब ये कह रहा हूं कि इमरान खान साहब के बयानात को तोड़ मोड़ के गलत रंग दे के पेश किया जाता है और लोग मुझे जुगते करते हैं। अच्छा, जी 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 जी, जब भी मैं ये बात करता हूँ मुख्तलिफ जुगतें शुरू हो जाती हैं। एक बंदे ने लिखा हुआ था, चौधरी फवाद साहब का मुंह ऐसे जिमें घाटा वा आला फुटबॉल होता है। अच्छा साहब, ये जुगल सुन के पेट्रोल पंप पे चले गए, जाके कहते हैं यार मेरी हवा पूरी कर दे। और उसने आगे से कहा 635 रखनी है, 40 रखनी है हवा। मैं कहने नहीं है, तू 35-40 नहीं रखनी, मैं तेनों इधर एक रखनी। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। गवर्नमेंट को भी तवज्जो देनी चाहिए कि इस तरह के जो 2-3 फराडियों को पकड़ के किधरे टंगे शंगे, कोई ऐसा उनको सजा दे, कोई जुर्माना करेंगे ताकि ये बंद हो ये सिलसिला। अच्छा जी, जो रोजगार है वो चूंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई हुई है पाकिस्तान में भी, और लोग रोजगार की तलाश में निकलते हैं। जी जी, उसमें ज्यादातर लोग जो है ना जी, अब अल्लाह हमें माफ कर दे और अल्लाह पाक हमें सीधे रास्ते पे ले आए। ज्यादातर अब लोग जो हैं वो नेगेटिव सोचते हैं कि किस तरह हमें रोजगार मिल जाए, तरीका भी शक 2 नंबर ही हो। तो मेरा ख्याल है कि कल परसों में एक बुजुर्ग हैं हमारे, हाजी नजीर साहब बीमार हो गए। हाजी नजीर साहब गुजरात वाले बड़े मशहूर आदमी, तो बीमार हुए तो मैं उनके पास बैठा हुआ था उनकी बीमार पुरसी के लिए। तो कहने लगे, अय्यी पुत, याद रखना जिस बंदे ने भी सूद पे पैसे लेके काम किया है ना, उसका काम कभी तोड़ नहीं चढ़ा, उसको नुकसान ही हुआ है। मेरी जो जिंदगी पूरी गुजरी है बिजनेस में, और रंग राम का मैंने बंदा देखा है, और बहुत सारे बिजनेसमैन जो हैं वो हमारी आंखों के सामने रहे हैं जिंदगी में। आज तक सूद पे पैसा लेके जिसने काम किया, मैंने उसे फलते फूलते नहीं देखा, उसका बेड़ा गर्क होते ही देखा। मगर अब कहते हैं कि लोग जो हैं वो निकलते हैं बाहर, तो वो कहते हैं जी कि किसी तरीके से पैसे मिल जाएं, सूद पे मिल जाएं, बैंक से, किसी प्राइवेट बंदे से सूद से मिल जाएं, बस पैसे आ जाएं, मैं किसी तरीके से अमीर हो जाऊं। वो जो मैं अक्सर कहा करता हूं कि अब स्पीड इतनी बढ़ गई है और शॉर्टकट की इतनी आदत बढ़ गई है कि अक्सर लोग कहते हैं कि 9:30 हो गए, महल्ले तक अमीर ही नहीं होया। तो 2 नंबर तरीके से इतनी ज्यादा तादाद में बिजनेसमैन आगे आ रहे हैं कि मैं सोच रहा हूं कि जिस तरह हम पिछले सेगमेंट में आबादी का जिक्र कर रहे थे कि आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, इसी तरह ये ना हो कि हमारे मुल्क में फराडिये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ना शुरू हो। मेरा मतलब है कि अब सरेआम, ये देखो ना, ये सरेआम वाली बात है ना कि आज भी आपके फोन के ऊपर मैसेज आ जाता है किसी नंबर से कि आपका जो बैंक कार्ड है, क्रेडिट कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है, तो उसको खुलवाने के लिए हमारे नंबर पे या मुझसे राब्ता करें। भाई तेरे क्यों करिए राब्ता, बैंक वाले फोन करन, तू साडा फूफी दा पुत्तर है या तू अपना साला लगना है मेरा, इन्हें क्यों इतनी हमदर्दी चढ़ी हुई है। ये हो सकता है कि किसी प्राइवेट नंबर से ये मैसेज आए, तो क्यों आए? वो बैंक वाले तो चलो बैंक की हेल्पलाइन जो है वो तो करें, तो आप करें राब्ता। अब तो इतनी अक्ल समझ होनी चाहिए लोगों को, और है भी अक्सर कि भाई इस तरह के जो मैसेज आते हैं वो फ्रॉडिये करते हैं, मगर कर रहे हैं, उसके बावजूद मैसेज कर रहे हैं लोग इस तरह के। बिल्कुल, अक्सर आप देखते हैं कि आपका इनाम निकल आया, राब्ता करें। हाँ जी, हाँ जी। वो इनाम फिर करोड़ रुपए का दस के फिर कहते जी 7 लाख रुपया तुम टैक्स जमा कराओ तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। बिल्कुल, उन्होंने ये होता है कि चलो 100 बंदे को कहेंगे विचों 3 को 7 लाख कराएंगे ही जमा, थैले वर्गे करा देते हैं यार। हमारे बड़े बड़े अच्छे, मैं नाम नहीं लूंगा,
बड़े समझदार और फेमस आर्टिस्टों ने करा दिए पैसे कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से गड्डी मिल रही है और गड्डी चूंकि है 45 लाख की, तो आप 2.5 लाख रुपया जमा करा दें, वो रजिस्ट्रेशन वगैरह टैक्स वगैरह है और आपको गड्डी मिल जाएगी। तो जाकर 2.5 लाख दे आया किसी। देखो ना जरा, ये अलमास बॉबी जो हैं हमारे ख्वाजा सराओं के जो लीडर हैं, अल्लाह अल्लाह करना शुरू हो गए हुए हैं, उनके साथ इसी तरह का हमने फ्रॉड एक डिस्कस नहीं था किया कि आपको दफ्तर मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है, फलां मिल रहा है, फलां मिल रहा है, और को उनके इलाके का कोई थानेदार के पता नहीं कौन पुलिस वाला आ गया था साथ कि दियो जी इन्होंने टैक्स दे पैसे जेडे 2.5-3 लाख रुपया दियो तो तुहानू गड्डी ते दफ्तर मिल रहा है। साथ पुलिस वाला है। हाँ, वो कहते हैं जी इलाके का मेरे का पुलिस वाला था, मैं उसे जानती थी। सो ऐसे जो फ्रॉड हैं वो अब मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को भी तवज्जो देनी चाहिए कि इस तरह के जो 2-3 फ्रॉडियों को पकड़ के किधरे टंगे शंगे कोई ऐसा उनको सजा दें, कोई जुर्माना करें कि ताकि ये बंद हो ये सिलसिला। मैं हैरान हो गया हूँ, पिछले दिनों कोई 4-5 दिन पहले नेट के ऊपर मैं एक किसी को देख रहा था, किसी लड़के को, कि वो खबरें कोई सुना रहा है कोई सोशल मीडिया के किसी चैनल पे कि एक पंजाबी अदबी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने के लिए कोई पार्टी है वो जो फंड रेजिंग कर रही है जी। अच्छा, कि फंड दें हमें, हमने पंजाबी अदबी कॉन्फ्रेंस करानी है। अच्छा। और वो उसमें सुहेल अहमद और आरफ लोहार जो फनकार हैं पंजाब के वो भी शामिल हैं। मेरी पहले तो हंसी निकली। मैंने कहा यार फिटे मुंह, ये क्या बात हुई? मैंने वो पूरा इश्तेहार पढ़ा था, उसमें लिखा था आरफ लोहार चिमटा लेके आएंगे और सुहेल अहमद फूकनी। देखो ना यार लानत है ऐसी फंड रेजिंग पे जो आप फ्रॉड के साथ कर रहे हैं। और वो अपनी तरफ से वो बंदा जो सुना रहा था वो मेरी हमदर्दी कर रहा था कि वो तो जनाब खुद करते हैं ये वो। क्या जरूरत है इस तरह की गुफ्तगू करने की कि सोशल मीडिया के ऊपर आप इश्तेहार लगा रहे हैं? भाई आप अगर पंजाबी माँ बोली या पंजाब की धरती की जुबान के लिए अगर प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकते तो खुदा के वास्ते कोई नेगेटिविटी तो ना खिला रहे, इस तरह का तो ना कोई काम करें कि नफरत होनी शुरू हो जाए। पहले कौन सा यहाँ पे आप लोग पंजाबी जुबान से मोहब्बत कर रहे हैं? शर्म आती है खुदा की कसम देख के कि ये क्या हो रहा है, किस तरह के लोग हैं। ये साथ है पंजाब, वो लोग किस तरह अपनी जुबान के साथ मोहब्बत कर रहे हैं और किस तरह उसको प्रमोट कर रहे हैं। और हम लोग इस तरह के स्कैंडल आगे करके तो हम एक दूसरे को जुतियां मार रहे हैं। फिटे मुंह उस बंदे का जिसने इस तरह का कोई प्लान किया है कि फंड इकट्ठा हमारे नाम पे या आरफ लोहार साहब के नाम पे इकट्ठा किया जाए। लानत है ऐसे रिज़्क पे, ऐसे पैसे पे। हम तो अल्लाह के फजल से किसी से टगे के रवादार नहीं है। जो रब देता है वो सबसे अव्वल है। वो बेशक 2 नवाले हैं, वो हमारे लिए बहुत है, बहुत है, वाफर है। शुक्र है तुम तो ना को वो 2 नवालों की बात कर रहे हैं यार। उसके लिए 2 नवाले यार, एक तोड़े का एक नवाला ही होता। तुम मजाक समझते हो उसे? नहीं सीरियसली, ये जो फ्रॉड है ना जी, इस तरह के घटिया ये इन पे मैं समझता हूँ कि कोई बड़ा डाटा कानून बनना चाहिए। हम रोज दूसरे तीसरे हफ्ते अपने शो में चीख रहे होते हैं कि अब ये फ्रॉड हो रहा है, अब ये फ्रॉड हो रहा है, अब इस तरह लूट रहे हैं, अब इस तरह लूट रहे हैं। कभी भी नहीं हमने सुना कि वो चीजें बंद हो गई। वो सारे तरीकाकार जो है उनमें और तरीके जो हैं वो जमा होते जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे। वो वज़राए आला जो हैं वो बैठ के तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके तो हर सूबे का बंदा बता रहा है कि मैं पता नहीं सूबे ने चुक के चन्न ते ले गए हैं। और यार खुदा के वास्ते ये छोटे छोटे घटिया किस्म के फ्रॉड तो तुम लोगों से बंद नहीं हो रहे। इन निकी निकी जो वजहें हैं गरीब के लुटने की, वो तो तुमसे कंट्रोल नहीं हो रही। तुमने क्या करना है? जितनी मर्जी प्लान कर लो, जो मर्जी कर लो, चलो तोड़ो, कुछ भी नहीं तुम लोगों ने। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि ऐसे लोगों की इज्जत करें जो फुर्सत के वक्त आपसे बात करते हैं, और ऐसे लोगों से प्यार करें जो फुर्सत निकाल के आपसे बात करते हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।